کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کے ان مسٹیریس حروفوں کا راز جان جاتا ہے نا تو اسے کائنات کے سب سے گہرے رازوں کی چابی مل جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اسم اعظم کی بھی، اور اسے خدا کی طرف سے ایسے طاقت اور علم ملتی ہے جو عام لوگوں کے ذہن سے پرے ہوتی ہے، جیسے کہ وہ پرندوں اور جانوروں اور جنوں اور دوسرے مخلوقات سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اور کچھ ایسے راز بھی ہیں جس کے سمجھنے کے لیے ہم قابل ہی نہیں ہیں۔ اور بعض صوفی کہتے ہیں کہ اصل میں ان حروفوں کی تعداد 30 تھی، اور اللہ نے ان میں سے صرف 29 ہی ظاہر کیے، اور ایک سب سے خاص و خاص حروف کو اللہ نے چھپا دیا۔ اور یہ ایک ایسا حروف ہے جسے نہ بولا جا سکتا ہے اور نہ تصور کیا جا سکتا ہے، اور اس حروف کے ذریعے سے اللہ کے سب سے گہرے راز جانے جا سکتے ہیں، اور اسے صرف اللہ اپنے اولیاء دوستوں کو سکھاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا حروف ہے جسے نہ ظاہری زبان سے بولا جا سکتا ہے اور نہ تصور کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے حروف جیسے کہ الف، لام، میم اور اسی طرح کے 14 الگ الگ عربک حروفوں کے کمبینیشنز ہمیں قرآن کے 29 الگ الگ صورتوں میں نظر آتے ہیں، جیسے آپ انہیں دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اور کئی سارے صوفی علماء کہتے ہیں کہ ان 14 حروفوں کے اندر ہی اسم اعظم کا راز چھپا ہوا ہے، اور میں نے اس کے بارے میں اپنے ریسرچ کے دوران جو کچھ بھی سیکھا اور جو بھی راز جانے نا وہ میں آپ کو کھول کر بتانے والا ہوں، اور ایسا کچھ یوٹیوب پر آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا جو ہمیں ابن اسحاق کی سیرت کی کتاب، امام بخاری کی تاریخ اور دوسرے تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہے، جسے حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ جب ابو یاسر بن اخطاب جو کہ مدینہ کے ایک یہودی قبیلے سے بلانگ کرتا تھا، اور ایک دفعہ وہ یہودیوں کے ایک گروپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت الف لام میم ذالک الکتاب پڑھ رہے تھے، اور اسی دوران ابو یاسر کا بھائی حی بن اخطاب دوسرے بڑے یہودیوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتے ہو، اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تلاوت کرتے سنا ہے جو ان پر نازل ہوا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب۔ اور یہ سن کر یہودیوں نے کہا، واقعی تم نے ایسا سنا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خدا کی قسم میں نے سنا ہے۔ اور یہ سن کر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم خود محمد کے پاس جا کر یہ سنیں گے، اور حی بن اخطاب ان یہودیوں کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، اور وہ یہودی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اے محمد کیا یہ کلام جو تم پڑھتے ہو اسے جبریل آپ کے پاس اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس پر ترنت وہ کہنے لگے کہ اے محمد اللہ نے تجھ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ آپ کے سوا ان میں سے کسی نبی کی اللہ نے ان کی حکومت کی مدت اور ان کی امت کی عمر بیان کی ہو۔ اور سبھی یہودی آپ پر اعتراض کرنے لگے، اور ترنت حی بن اخطاب اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر اس کے علم کے مطابق کہنے لگا کہ الف 1، لام 30 اور میم 40، یہ کل 71 سال بنتے ہیں، اور لوگوں کو کہنے لگا کہ کیا تم اس نبی کے دین میں داخل ہوگے جس کی بادشاہی کی مدت اور اس کی امت کی عمر صرف 71 سال ہے؟ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الف لام میم صاد، اور اس نے کہا اب تو یہ زیادہ بھاری اور طویل ہے، الف 1، لام 30، میم 40 اور صاد 90، یہ کل 161 سال بنتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے ساتھ اور کچھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں بے شک ہے۔ تو اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الف لام را، اور اس پر اس نے کہا اب تو یہ اور بھی زیادہ بھاری اور طویل ہے، الف 1، لام 30، میم 40 اور را 200، اور یہ کل 171 سال ہو گئے۔ اور آخر میں وہ حیرانی اور انتہائی کنفیوژن میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ہم پر معاملہ اور بھی زیادہ مشکل کر دیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کیا دیا گیا ہے۔ اور پھر وہ اٹھ کر چلے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ ابو یاسر نے اپنے بھائی اور ربیوں سے کہا کہ شاید یہ تم لوگوں کو اسی لیے نہیں پتا کیونکہ یہ سب کچھ محمد کے لیے خاص ہو، اور ان ساری تعداد کو ملا کر 734 ہوتے ہیں، اور محمد کے پاس تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے جسے کیلکولیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ آپ آنے والے ہیں، اور آپ کی امت کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے، بس وہ آپ کی امت کی مدت نہیں جانتے تھے۔ اور جب وہ آئے
और ये आयत सुनी तो कहा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दिया गया है तो वो बेशक एक सच्चे नबी हैं। और इस वाक़ये से हमें ये भी पता चलता है कि यहूदी पहले की कौमों की पेशनगोइयाँ प्रेडिक्शंस इसी तरह से किया करते थे, क्योंकि वो क़बाला, इल्मुल हुरूफ और इल्मुल आदाद में काफ़ी ज़्यादा माहिर थे और काफ़ी सारी उनकी पेशनगोइयाँ ऐसी भी थीं जो सच हो जाया करती थी। पर कुरान की तो बात ही अलग थी। ये उनके लिए कुछ अनोखा और अलग था और ऐसे कलाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुने थे। और इनका इल्म कैसा था इसके बारे में हम बात करेंगे, पर सबसे पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ों की तरफ आते हैं कि आखिरकार कुछ कुरान की सूरा के इब्तिदा में जो ये हुरूफ है ना, इनका क्या मतलब है और ये आखिरकार है ही क्यों। इनकी मीनिंग के बारे में सैकड़ों स्कॉलर्स ने लिखा है और कई सारे सहाबा, ताबीन और सूफियों ने बयान भी किया है, पर मैं आपको सिर्फ वही बताने वाला हूँ जो इसके मीनिंग को डिस्क्लोज करने के काफी करीब है। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि इन हुरूफों में इसमें आज़म की राज छुपी हुई है और ऐसा इब्न अब्बास कहते हैं और कुछ दूसरी जगह इब्न अब्बास कहते हैं कि ये शुरुआती हुरूफ खुद ही अल्लाह के इसमें आज़म है। और हजरत अबू बकर और हजरत अली कहते हैं कि अल्लाह की नाजिल हुई हर किताब में अल्लाह का एक राज शिर है और एक असल एसेंस है और कुरान का राज इसके सूरा के शुरुआती लेटर्स में है। और हजरत उमर, उस्मान और इब्न मसूद कहते हैं कि ये हुरूफ सेपरेटेड लेटर्स हिडन नॉलेज की शाखाओं की तरह हैं जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और इसी छुपी हुई हिडन नॉलेज के ऊपर एक काफी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन इमाम राजी उनकी तफसीर में बयान करते हैं, जिसे मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि इल्म समंदर की तरह है और इस समंदर से एक दरिया निकलती है, फिर इस दरिया से एक नहर निकलता है, फिर नहर से छोटी पानी की नालियाँ निकलती है और अगर दरिया में समंदर भर जाता तो वादी डूब जाती और बिगड़ जाती, या फिर नहरों और छोटी नालियों में पूरी समंदर का पानी उड़ेल दिया जाता तो वो बिगड़ कर बर्बाद हो जाती। और ये ठीक वैसी ही बात है जो अल्लाह ने कुरान में फरमाई है कि उसने आसमान से पानी बरसाया और वादियाँ अपनी पैमाइश के मुताबिक बहने लगी। तो इसी तरह इल्म के समंदर अल्लाह के पास है और उसने रसूलों को पूरी वादियाँ दी हैं और पैगंबरों ने अपने इल्म के दरिया से उलमा को, स्कॉलर्स को नहरें दी और उलमा ने आम लोगों को उनके समझ के मुताबिक छोटी नहरें दी। है ना, काफी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन। और इसी तरह एक रिवायत के मुताबिक पहले के उलमा के पास राज थे और खुलफा के पास राज थे और फरिश्तों के पास भी राज हैं और सबसे खास पैगंबरों और रसूलों के पास राज थे और इन सबसे बढ़कर खुद रब्बुल आलमीन के पास राज है जो सबसे बढ़कर है, जिसका इल्म किसी वजूद को नहीं पता। और आता है कि अगर जाहिल उलमा का राज जान लेते तो उन्हें बर्बाद कर देते और अगर उलमा को खुलफा का राज मालूम हो जाता तो वो इन्हें इनकार कर देते और अगर खुलफा को पैगंबरों का राज मालूम हो जाता तो वो उनसे इख्तिलाफ करते और अगर पैगंबरों को फरिश्तों का राज मालूम हो जाता तो वो उन पर इल्ज़ाम लगाते और अगर फरिश्तों को अल्लाह का राज मालूम हो जाता तो वो हैरत जुदा होकर गिर जाते और बर्बाद हो जाते। और अल राजी कहते हैं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि कमज़ोर जहनों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बड़े राजों को बर्दाश्त कर सके, जैसे चमगादड़ दिन की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके लिए बनी ही नहीं। और जब पैगंबरों का जहन आला बना दिया गया तब वो नबूवत के राजों को बर्दाश्त कर सके और जब उलमा का जहन आला हो गया तब वो आम लोगों की समझ से परे के राजों को बर्दाश्त कर सके। और इसी तरह से बातनी उलमा जिनमें हिकमत है यानी एक सूफी उलमा, जब उनका जहन आला हो गया तब वो उन राजों को भी बर्दाश्त कर सके और समझ सके जो ज़ाहिरी उलमा कभी नहीं समझ सके। और इब्न अब्बास कहते हैं कि कोई भी उलमा इनको समझ नहीं पाए और वो कहते हैं कि मुझे इनकी तावील का इल्म अता किया गया है और उनकी समंदर जैसी इल्म का कुछ हिस्सा हम जान सकते हैं। और इसके अलावा इमाम अल राजी लिखते हैं कि इमाम शाबी जो कि हजरत उमर के दौर के एक काफ़ी इंटेलेक्चुअल आलिम और ताबीन गुजरे हैं, इनसे इन हुरूफों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह अल्लाह का राज है, इसे मत ढूंढो क्योंकि आशिकों के बीच कुछ राज होते हैं जिसे ना जुबान बयान कर सकती है
और ना कोई कलम, और हमारे नबी के बाद अल्लाह के वली और अहले बैत ही सिर्फ इस राज के कुछ हिस्से जानते हैं, और वो इस राज से इतनी अच्छी तरह से वाकिफ है कि ये हुरूफ खुद उनसे इस राज के बारे में बात कर सकते हैं। यानी ये हुरूफ खुद उन्हें इस राज की जानकारी देते हैं, और इसके जरिए से जानवर जैसे कि हिरन और छिपकलियां और दूसरे जानवर उनसे बात कर सकते थे। चलिए अब मैं आपको इसकी और भी ज्यादा गहराई में ले जाता हूँ और इसके और भी गहरे राज आपको बताता हूँ। तो इल्मुल हुरूफ के इस्लाम में दो काफी बड़े फिगर गुजरे हैं, पहले अहमद अल-बूनी और दूसरे इब्न अरबी। और इस इल्म हुरूफ की शुरुआत कैसे हुई और किन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। पर सबसे पहले हम इन दो फिगर्स के कामों को गहराई से जान लेते हैं, जिससे कि हम इस राज को अच्छे से समझ सकें, और अल्टीमेटली जिससे कि हमें कुरान की इन सीक्रेट लेटर्स की मतलब को समझने में मदद मिले, और इसके साथ इसमें आज़म को भी। तो इब्न अरबी की लिखी एक किताब है जिसका नाम फुतुहात अल-मक़ियात है, और इस किताब के बारे में आप कह सकते हैं कि ये सीक्रेट नॉलेज की एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया है। और ये इतनी बड़ी है ना कि इस किताब की 27 वॉल्यूम्स है, और इसमें इब्न अरबी ऐसी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं जो कायनात की इब्तिदा के बारे में बताती है खुदा के अल्फाजों के जरिए से, जैसे कि उसके हुक्म के जरिए से। जैसे कि कुरान में आता है कि अगर खुदा कोई चीज का इरादा करता है तो वो कहता है कुन फयाकून, हो जा तो वो हो जाती है। और इसके साथ वो अल्फाजों की ताकत के बारे में भी बताते हैं, और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तख्लीक और कुरान का राज क्या हुरूफों में छुपा हुआ है। पर हम इनकी किताब की ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें और भी दूसरी काफी जरूरी चीजों पर भी बात करनी है। तो एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इब्न अरबी इसके साथ इब्न बराजान के बारे में बताते हैं, जो कि एक काफी बड़े सूफी और मुहद्दिस थे, और इन्हें इल्म हुरूफ का काफी गहरा इल्म था, और इन्होंने अल्लाह के नामों के ऊपर काफी कॉम्प्रिहेंसिव काम भी किया है। इनके बारे में इब्न अरबी बताते हैं कि ये यरूशलेम के दोबारा मुसलमानों के हाथ में आने की प्रेडिक्शन करते हैं उनके लेटर्स के न्यूमेरिकल मेथड्स के जरिए से, और यहाँ तक कि वो एग्जैक्ट डेट भी बता देते हैं कि ऐसा कब होने वाला है, और वैसा ही होता है ना। काफी ताज्जुब वाली बात। पर ये बात सच है या फिर झूठ हम नहीं जानते, पर इस वीडियो के आखिर में इन सभी चीजों के बारे में मैं अपनी राय जरूर दूंगा। तो चलिए अब मैं आपको अहमद अल-बूनी की लिखी हुरूफों की एजोटेरिक इंटरप्रिटेशन के बारे में बताता हूँ, और ये भी अपनी एक्सप्लेनेशन को ठीक उसी तरह से शुरू करते हैं कि किस तरह से हुरूफों के जरिए से दूसरे हुरूफ पैदा हुए और ये पूरी कायनात पैदा हुई। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ कि इन्होंने लिखा क्या है, क्योंकि ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग भी है, और धीरे धीरे इन सभी की हकीकत भी मैं आपको बता दूंगा। वो लिखते हैं कि खुदा की तजल्ली से 28 हुरूफ पैदा हुए, और अलिफ सब हुरूफों से बढ़कर था, और जब अलिफ ने अपने हुरूफ को सबसे आला करार दिया तब रहमत से ये 28 हुरूफ नाजिल हुए, और ये 28 हुरूफ तमाम हुरूफों की किस्म बन गए। फिर दूसरी तजल्ली हुई जो इन हुरूफों का ही तारीफ है, और ये हुरूफ अपनी आसमानी और दुनियावी मीनिंग के साथ पहचाने गए, और इन सभी हुरूफ में एक हुरूफ तो सबसे मुकर्रब हुआ, और इसमें खुदा के असरार है। और वो कहते हैं कि जैसे आसमान और जमीन साथ है जो मिलाकर 14 हुए, और कुरान में ये खास हुरूफ भी 14 ही हैं, और इसीलिए नंबर 7 और इसके मल्टीपल का इल्मुल आदाद में, न्यूमरोलॉजी में काफी अहमियत है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और खास जानकारी देता हूँ, और ये बताता हूँ कि इल्म हुरूफ की असल ओरिजिन, इब्तिदा क्या और कहाँ से है, जो आपको काफी पसंद आएगी। यहूदियों की एक काफी इम्पोर्टेंट और पुरानी किताब है जिसका नाम सिफर यज़ीरा है, अंग्रेजी में बुक ऑफ क्रिएशन, क्योंकि इब्रानी जुबान में यज़ीरा का मतलब होता है तख्लीक या फिर फॉर्मेशन। और यहूदी उलमा दावा करते हैं कि ये किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से भी काफी पहले की है, और इस किताब की असल ओरिजिन के बारे में यहूदी उलमा स्कॉलर्स कहते हैं कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वही के जरिए से मिला था, और क्लासिकल रब्बी कहरा के रब्बियों ने इस पर कभी शक किया ही नहीं कि हजरत इब्राहीम को ये किताब दिया गया था। ये बात सच है या फिर झूठ, इसके बारे में हम बात करेंगे, पर पहले ये देख लेते हैं कि इसमें आखिरकार लिखा क्या गया है। पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि इस्लाम के ज्यादातर पहले के जो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स जैसे कि अल-बूनी जैसे लोग इस किताब से काफी ज्यादा मुतासिर थे,
जो उनके कामों में ही झलकते हैं, जैसे अभी आप खुद ही जान जाओगे। ये किताब बताती है कि कैसे खुदा ने कायनात को 32 वेज ऑफ विजडम से बनाया, जिसमें शामिल हैं 10 शिफिरौत या फिर खुदाई ताकत और इब्रानी अल्फ़ाबेट्स के 22 हरूफ। और ये 22 हरूफ 3 मदर लेटर्स यानी अलिफ, मीम और शीन में तकसीम है, और ये 3 हरूफ सभी हरूफों में सबसे आला हैं। और इस तरह की तकसीम हमें कुछ कॉन्सेप्ट से भी मिलती है, जैसे कि हिब्रू में खुदा के नाम के 3 हरूफ, हफ्ते के 7 दिन, इजराइल के 12 कबीले, कैलेंडर के 12 महीने, और साथ ही कुछ पुराने फ़लसफ़े के आइडियाज़ जैसे कि 3 एलिमेंट्स आग, पानी और हवा, और 7 सैयारे और 10 डायरेक्शंस और इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शंस और पार्ट्स। और इसके साथ ये किताब ये भी बताती है कि कैसे अल्लाह ने 10 सिफरौत और 22 हरूफों का इस्तेमाल किया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये राज बताया अपनी अहद के तौर पर। और यहूदियों का ये जो दावा है ना कि ये हज़रत इब्राहीम की किताब है, मेरे मुताबिक इसके सच होने के चांसेस ना के बराबर हैं। और अगर ऐसी कोई भी किताब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को दी भी थी जिसमें अल्लाह ने उन्हें हुरूफ और सितारों का इल्म अता किया था, तो वो अब लॉस्ट हो चुकी हैं, पर ये वो किताब नहीं है। और जैसे कि कुरान की एक आयत में आता है सुहुफी इब्राहीम व मूसा, जिसमें सुहुफ का मतलब होता है स्क्रोल्स या फिर किताब, और इब्रानी में सिफर का मतलब भी सेम ही होता है। तो इससे ये साबित होता है कि वाकई में हज़रत इब्राहीम को किताब दी गई थी, पर इसकी जानकारी ना हमें अल्लाह के रसूल ने दी, ना कुरान में अल्लाह ने दी। चलिए अब इससे भी कुछ खास चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ, कुरान की शुरुआती मिस्टीरियस लेटर्स के बारे में, जो हमें किताब शरा मानी अल हुरूफ में मिलती है, जिसे अल हुसैन अल सुलामी ने आज से तकरीबन 1000 साल पहले लिखा था। और ये एक ऐसे शख्स थे जो सूफी लिटरेचर के हिस्ट्री के फील्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर थे, और उनकी कई सारी जो राइटिंग्स है ना उन्हें प्रिजर्व कर दिया गया था, और धीरे धीरे करके वो पब्लिश होते गए। और ये कुरान की मिस्टीरियस लेटर्स की काफ़ी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग हदीसों के ज़रिए से, सहाबा, ताबईन और सूफियों के कॉल के ज़रिए, जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा। सुलामी अपनी खिताब की आगाज एक हदीस से करते हैं, जिसमें हज़रत अली बयान करते हैं कि कुरान की हर आयत का एक ज़ाहिर और एक बातिन होता है, और हर हुरूफ लेटर की एक हद होती है, और एक मकाम उरूज इसकी मुताला का, तहकीक का होता है। और वो कहते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि हुरूफों की तहकीक जायज़ है, जिससे इसके पीछे की छुपी राज को जाना जा सकता है। और वो अपने शरा मानी अल हुरूफ में हुरूफों का इस्तेमाल खास तौर पर कुरान के मिस्टिकल लेटर्स के लिए करते हैं, जो कुरान के 29 सूरा के आगाज में हमें मिलता है। और इसी तरह से वो सारी अरबिक लेटर्स के मिस्टिकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। और वो इब्न अब्बास की एक रिवायत को भी कोट करते हैं, जिसमें वो बयान करते हैं कि अरबिक अल्फ़ाबेट्स में ऐसे राज हैं जिसमें कायनात के सारे वंडर्स, अजायबात मौजूद हैं। और इसी तरह इन सीक्रेट लेटर्स के ऊपर हमें अबू सईद अल खुदरी और इब्न अब्बास से ही मरवी एक और हदीस का पता चलता है कि जब हज़रत ईसा इब्न मरियम एक रब्बी उस्ताद को हुरूफों का मतलब समझाते हैं और कहते हैं कि लेटर अलिफ अल्लाह को सिंबलाइज करता है। और यहाँ कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हज़रत ईसा तो अरबी नहीं बोलते थे, तो अलिफ कहाँ से आई। मैं आपको बता दूं कि सारे सेमेटिक लैंग्वेजेस लगभग 90% एक जैसे हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अरामीक और हिब्रू बोलते थे, और इनमें भी अलिफ लेटर मौजूद है, जैसे हमने पहले भी देखा है। और इसके बाद सुलामी हज़रत अली का एक कॉल पेश करते हैं, जिसमें वो फरमाते हैं हुरूफ का इल्म एक ऑकल्ट पोशीदा इल्म है जो सिर्फ खुदाई इल्म वाले लोगों को मालूम होता है। अगर मुझे इसके जिक्र का मकाम मिलता तो मैं ज़रूर आम लोगों को इसे बयान कर देता। और कहा जाता है कि जब अल्लाह किसी पर इन हुरूफों का राज जाहिर कर देता है तो वो सब मखलूक़ात, चाहे वो इंसान हो, जिन हो, दरिंदे हो या परिंदे हो या दूसरे कोई जानवर, वो सभी की बातें समझ सकता है और वो उनके हुक्म मानते हैं। और इसी तरह एक और हदीस का हमें पता चलता है, जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तालीम के लिए एक रब्बी उस्ताद के पास भेजा। तो उस्ताद ने उनसे कहा लिख,
तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, उस्ताद क्या लिखूं? उस्ताद ने जवाब दिया, लिख अल्लाह के नाम से। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस्ताद से पूछा कि इसका मतलब क्या है? उस्ताद ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, पर हम ऐसा ही लिखते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब देकर कहा, मैं बताता हूँ कि अलिफ अल्लाह की खूबसूरती है, शीन अल्लाह की अजमत है और मीम अल्लाह की बादशाहत है। और कहा, अल्लाह सब खुदाओं का खुदा है, वो रहम करने वाला अल रहमान है दुनिया और आखिरत में, और शफकत करने वाला अल रहीम है आखिरत में। और कुछ दूसरे सूफी कहते हैं कि कोई भी हुरूफ ऐसा नहीं है जो अपने जुबान से अल्लाह की तस्बीह का जिक्र ना करता हो। हर जुबान का एक हुरूफ होता है और हर हुरूफ की अपनी एक जुबान होती है, और अल्लाह के तख्लीक में उसके राज छुपे हुए हैं। और बाज़ उलमा कुछ रिवायात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब अल्लाह ने आदम को बनाया तो ये राज उनके जरिए से जाहिर किया, लेकिन अपने फरिश्तों को नहीं बताया। तो ये हुरूफ आदम अलैहिस्सलाम की जुबान से मुख्तलिफ तरीकों और अलग अलग जुबान में निकलने लगे, और अल्लाह ने हर हुरूफ के लिए एक खास शक्ल बनाई। और कुछ सूफी कहते हैं कि इस हुरूफ को अल्लाह ने औलिया के दिलों में नक्श कर दिया है, और इसकी वजह से फिर सब मखलूकात, चाहे वो इंसान हो, जिन हो, दरिंदे, परिंदे या जानवर हो, उनके दोस्त बन जाते हैं। और ये एक अजीम मुकाम है जो उन्हें मिलता है। और इसी तरह दूनू मिस्री, जो कि इजिप्ट के काफी बड़े सूफी और आलिम और एल्केमिस्ट गुजरे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पहले शख्स थे जिन्होंने इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स राइटिंग्स के राज को जाना था। तो एक किताब में वो कहते हैं कि अल्लाह का सबसे बड़ा नाम वो है जिसके जरिए से जो कुछ मांगा जाए तो उसका जवाब मिलता है। और ये 7 हुरूफ हैं, और अल कुरान यानी सूरह फातिहा में 7 आयत ही हैं, जिनमें सारे अरबिक अल्फाबेट्स के हुरूफ हैं सिवाय 7 हुरूफ के, और वो ये हुरूफ हैं जो अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। और इसी के बारे में अलबूनी उनकी एक किताब में, जिसका नाम मनबाह उसूल अल हिकमा है, और इसमें वो दूनू मिस्री की कौल का नकल करते हुए ही लिखते हैं कि अल्लाह का ग्रेटेस्ट नाम इन हुरूफों में ही छुपा हुआ है। और अपनी इस किताब में वो लिखते हैं कि शेख अस्सुनूसी इस नाम से दुआ करते थे, ये कहते हुए, अल हक के नाम से मैं दुआ करता हूँ, जा खा ज़ा ता शीन जीम फा। और एक स्कॉलर जिनका नाम अबू तालिब अल मालिकी है, वो अपनी किताब क़ुत अल क़ुलूब फ़ी मामलात अल महबूब यानी प्रोविजंस ऑफ द हार्ट्स में लिखते हैं कि इमाम अली दुआ करते वक्त ये कहते थे, क़ाफ हा या आइन सौद, जो हमें सूरह मरियम की पहली आयत में मिलती है। और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उन गुनाहों से जो अल्लाह के गजब का सबब बनते हैं, और ये तेरी नेमतों को उलट देते हैं, या हिफाजत को हटा देते हैं, या बारिश को रोक देते हैं, या दुश्मनों को मुझ पर बढ़ा देते हैं। या अल्लाह हमें अपने आप से मदद फरमा। इसी तरह और एक शेख कहते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा जो स्कॉलर्स से मुख्तलिफ था, जिसमें अल्लाह ने कहा क़ाफ हा आइन सौद, और मुझसे कहा ये अल्लाह और रसूल के दरमियान एक राज है। और इसका मतलब कुछ ऐसा मुझे पता चला जिसमें अल्लाह के रसूल के बारे में कहा जा रहा है, तुम वजूद के कहफ हो, क़ाफ जहाँ हर वजूद पना चाहती है, और हा जो हयात ज़िंदगी है, और या तुम हर चीज़ के सोर्स हो, और आइन तुम मेरे औसाफ हो, और सौद जो तुम्हें मानता है वो मुझे मानता है, और तुम हमारी अमानत हो, हमारी क़ुर्बत हो। और अगर आप इसमें आज़म अल्लाह की ग्रेटेस्ट नाम की जानकारी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन 2 वीडियोस को आप ज़रूर देखें, इससे आपको इसके बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। तो और एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में इन हुरूफों के बारे में जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई है ना, इससे आगे की चीज़ इन हुरूफों के राज के बारे में हम जान ही नहीं सकते, और इससे आगे की कोशिश करना वक्त की बर्बादी है, क्योंकि बाकी का हिस्सा इस इल्म का एक अलग ही लेवल का है, और ये मुतशाबिहात में से है। और हदीस से हमें पता चलता है कि क़यामत के करीब सारे के सारे मुतशाबिहात धीरे धीरे जाहिर होना शुरू हो जाएंगे, या फिर हम सिर्फ इनके बारे में और अल्लाह के दूसरे गहरे राजों के बारे में अपनी मौत के बाद ही जान सकते हैं, या फिर अपने कुछ खास बंदों को अल्लाह अपने कुछ खास राज सिखाता है। पर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसका दर्जा दूसरे मोमिन से बड़ा है, ऐसा नहीं है। तो चलिए अब उस इल्म के बारे में हम जरा जान लेते हैं जिसके जरिए से पहले की यहूदी फ्यूचर प्रेडिक्शंस किया करते थे। वो कबाला न्यूमरोलॉजी का इल्म है, और इसके जरिए से ही वो पहले के कौमों के कायम रहने की मुद्दतों को कैलकुलेट किया करते थे,
اور ایسی ہی ایک ناکام کوشش حی ابن اخطاب نے کی تھی جب اس نے اللہ کے رسول کو الف لام میم پڑھتے سنا تھا، جس کے بارے میں ہم نے شروعات میں بات کیا ہے، پر میں آپ کو اس کی پوری پروسیس نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسے کیا کرتے تھے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی، اور آکلٹ نالج کا استعمال ایسی چیزوں کے لیے کرنا حرام ہے، کیونکہ جو لوگ آکلٹ نیومرولوجی کا علم رکھتے ہیں وہ زیادہ تر اس سے ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شریعت کے بالکل ہی خلاف ہے۔ مثلاً وہ قرآن کے حروفوں کی آرڈر اور اس کی تعداد اور کئی الگ الگ طریقوں سے قیامت کب آئے گی اس کی کیلکولیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی کی حیات کتنی ہوگی اس کی بھی، اور کوئی ایگزام میں پاس ہوگا یا پھر فیل ہوگا اس کی بھی وہ کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کی ساری چیزیں جاننے کی کوشش میں وہ لگ جاتے ہیں جن کا تعلق علم غیب سے ہے، جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، اور بعض تو اتنے نیچے گر جاتے ہیں نا کہ وہ شیطان سے مدد لینے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ پوری طرح سے شرک اور حرام ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کا اگر کوئی اچھے فائدے کے لیے بھی ان کا استعمال کرتا ہے تب بھی یہ غلط ہے۔ بس اس ویڈیو کو آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے اور ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے دیکھیں، اور ایسی آکلٹ چیزوں کی حقیقت کے بارے میں ڈیٹیل میں کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا، پر کچھ جانکاری ان ویلیوز کے بارے میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا جو حی بن اخطاب نے ان حروفوں کو سن کر بتائے تھے۔ وہ عربک ابجاد نیومرل سسٹم یا پھر ہیبرو گیمیٹریا کے ویلیوز تھے، جن کا استعمال قرآن کے نازل ہونے سے بھی پہلے سے ہی ہوتا آ رہا تھا، جسے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو ان کے ویلیوز کے ساتھ، جیسے الف 1، لام 30 اور میم 40، اور ہو بہو اسی طرح کی ہیبرو لیٹرز بھی ہیں اور ان کے ویلیوز بھی ہیں، اور ان کی کیلکولیشنز کی کافی سارے الگ الگ میتھڈز بھی ہیں جنہیں آپ ابھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کی اگلی ویڈیو میں آپ کو اور بھی خاص چیزوں کی جانکاری دینے والا ہوں، اور آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی ٹاپکس پسند ہیں، میں ان پر بھی کوشش کروں گا ویڈیوز بناؤں۔ آپ نیچے کامنٹس میں ان کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔